Assalamu alaikum students, I am Usman from Conceptual Chemistry Zone, and today we will study the commercial preparation of sodium hydroxide by using diaphragm cell. The first part of this video will be in English and the second will be in Urdu और हिंदी। और अगर आप ये वीडियो उर्दू और हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दरमियान से स्विच करें। मगर टॉपिक पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। एंड इफ़ यू आर वाचिंग मी माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल रिक्वेस्ट you to please subscribe my channel because I upload 2 or 3. Now let's move to our topic. The sodium hydroxide is commercially prepared by the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. Sodium chloride is also called common salt or brine. So in short, we can say that the sodium hydroxide is prepared by the electrolysis of the aqueous solution of brine or common salt. Next, we will talk about the instrumentation of diaphragm cell. As you can see from the diagram, the diaphragm cell is made up of a steel tank in which there is a catch basin for the NaCl solution. The cathode is made up of diaphragm, which is made of asbestos, and the anode is made up of graphite. And there is a chlorine collector and hydrogen collector at the upper side of the diaphragm cell. During the process of electrolysis in the diaphragm cell, the steam is blown through the mixture that will help us to keep the perforation clear and to keep the electrolytes as warm. In the whole process, the chlorine goes to anode where it oxidizes and the hydrogen goes to cathode where it is reduced. Next we will talk about the general reaction which occurs during the electrolysis process of diaphragm cell. As we know, the chlorine goes to anode and it oxidizes by losing 2 electrons and gave up the chlorine gas. And at the cathode, the hydrogen reduces by taking up the electron. As we know, oxidation always occurs at anode and reduction occurs at cathode. As you can see from here, the water takes up 2 electrons and changes into hydroxide ions and releases hydrogen at cathode. And if we want to describe the overall reaction, we will say that the NaCl, which is called brine, loses its chlorine ion and take up the OH negative ion and changes into NaOH, which is sodium hydroxide, and that is the end product which we want to prepare. Now we generally face 2 types of problems while using the diaphragm cell, and the first problem is the chlorine which is produced reacts with OH negative ions and produced hypochlorite ions. As you can see from the equation, when chlorine reacts with OH negative ions, it will produce OCl negative ions, which are called hypochlorite ions, and that is the first problem. And the second problem is sometimes the hydroxide ions may attract towards the anode and they discharge there, releasing oxygen gas. That oxygen gas may contain some volume of chlorine and is impure in nature. The first problem will be solved by using diaphragm. Diaphragm separates the solution and allow the movement of sodium towards the cathode, which is beneficial for the movement of the current in the diaphragm cell. And the second problem is solved by keeping the concentration of brine very high at anode as compared to the cathode. The solution which flows out from the cathode compartment contains 11% NaOH and 16% NaCl.
After the evaporation and the filtration of NaCl, the liquid which is left contains 50% NaOH and 1% NaCl as an impurity, but this 1% impurity is not so significant and hence negligible. This is all about the commercial preparation of sodium hydroxide by using diaphragm cell. Thank you for watching. अच्छा जी, तो अब हम पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियली डायाफ्राम सेल की मदद से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमेशा डायाफ्राम सेल की मदद से जब भी प्रिपेयर करना हो तो NaCl सोल्यूशन जो है, जिसे हम ब्राइम कहते हैं या फिर जिसे हम कॉमन साल्ट कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम डायाफ्राम सेल की इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें नीचे की तरफ एक कैच बेसन होता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायाफ्राम सेल में जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है और जो कैथोड होता है वो एस्बेस्टॉस से बनी हुई एक डायाफ्राम होती है, और इसी वजह से इस एस्बेस्टॉस डायाफ्राम की वजह से इस सेल को हम डायाफ्राम सेल कहते हैं। और ऊपर की तरफ क्लोरीन को इंजेक्ट करने के लिए या क्लोरीन को रिलीज़ करने के लिए एक क्लोरीन कलेक्टर होता है और एक हाइड्रोजन कलेक्टर होता है। जब भी डायाफ्राम सेल में से करंट पास किया जाता है तो क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ जाती है और वहाँ जाकर रिलीज़ होती है, और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे रिलीज़ होती है। तो ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब डायाफ्राम सेल में से करंट गुजारा जाता है तो इस प्रोसेस में क्लोरीन जो है वो कहाँ पे रिलीज़ होती है और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर रिलीज़ होती है। मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो एनोड पे रिलीज़ होती है या कैथोड पे, या इस तरह पूछा जाता है कि जी जो एनोड या कैथोड है डायफ्राम सेल का उस पे कौन कौन से जो गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो ये आपने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है वो कैच बेसन में जो है वो जमा होता रहता है, जिसे बाद में हम अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इनके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्लोरीन एनोड पे जाती है, तो एनोड पे हमेशा जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। इसी बिना पे हम कह सकते हैं कि जब क्लोरीन एनोड पे जाती है तो वो जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो लूज़ कर देती है और क्लोरीन गैस की फॉर्म में आ जाती है, और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरफ जाती है। अब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, और रिडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जाती है, तो इसका जो रिएक्शन है वो कुछ यूँ होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को जज़ब करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं, और साथ हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे रिलीज़ हो जाती है। और ओवरऑल रिएक्शन ये होता है कि जो NaCl है उसके जो Cl आयंस हैं या क्लोरीन है वो लूज़ हो जाते हैं, और सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड आयंस मिल जाते हैं। सोडियम के साथ जब हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि हम बनाना चाह रहे होते हैं। यही तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। डायफ्राम सेल को इस्तेमाल करते वक्त हम 2 तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि जो क्लोरीन है वो रिएक्ट कर जाती है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और हाइपोक्लोराइट आयन बन जाते हैं। जिस तरह आपकी बुक पे ये एक इक्वेशन लिखी भी हुई है जिसमें क्लोरीन जो है वो OH नेगेटिव आयन के साथ जब रिएक्ट करती है तो OCl नेगेटिव आयन्स बनते हैं। ये OCl नेगेटिव आयन्स जो हैं इन्हें हाइपोक्लोराइट आयन्स कहते हैं। ये तो होगी जी पहली प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं वो एनोड पे चले जाते हैं और वहाँ जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं, और जब हाइड्रोक्साइड आयन्स एनोड पे डिस्चार्ज होते हैं तो ऑक्सीजन बनती है, और ये ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिल जाती है और क्लोरीन को इम्प्योर कर देती है। अब जो पहली प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए हम डायाफ्राम इस्तेमाल करते हैं। ये डायाफ्राम जो होती है ये सॉल्यूशंस को सेपरेट कर रखती है, और
और सोडियम को कैथोड की तरफ मूव करने में मदद देती है। यही वजह है कि जो करंट है वो आसानी से एक्सटर्नल सर्किट से गुजर जाता है। अब दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ब्राइन की जो कंसंट्रेशन होती है उसे एनोड पे ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द कैथोड। यही वजह है कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो आसानी से एनोड की तरफ मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। आखिर में कैच बेसिन में जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है उसमें 11% NaOH होता है और 16% NaCl होता है, जिसको एवेपोरेट किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है उसमें 50% NaOH होता है और 1% NaCl होता है एज एन इम्प्योरिटी। लेकिन यह है कि जो 1% NaCl है वो नेग्लिजिबल है और इसे कंसिडर नहीं किया जाता एज एन इम्प्योरिटी। ये था जी आज का आपका प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग डायाफ्राम सेल। और अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।